براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے پھر آج یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ نئے سال میں جو پہلا لائیو شو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ خداوند جو ہم سب سے پیار کرتا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ اپنے کلام سے ہماری رہنمائی فرماتا رہتا ہے اگر ہم اس کی باتوں کو سننے اور اس کی ہدایت کو پانے کے طالب رہیں تو۔ جب میں اس شو کے بارے میں دعا کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، تو خداوند اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے کلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو بہت سی سوچیں اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، بہت سے شکوک و شبہات، عدم تحفظ، مستقبل کی فکریں، بچوں کے بارے میں، شادی میں جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں، دنیا میں جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے بارے میں، اور دیگر لاتعداد مسائل جنہوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ تو آج اس شو کا آغاز کیا ان آسمان میں چھپی ہوئی پر اسرار حقیقتوں اور خدا جو تخت نشین ہے اس کی ذات کے مکاشفوں سے شروع کیا جائے، یا قصور میں زینب جس کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا، اور جھمرہ کے علاقے میں ابھی جو مسیحی لڑکیوں کو چوری کے الزام میں پولیس نے تھانے میں تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ پکار رہی ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے۔ کیا ان کے احوال سے اس شو کو شروع کروں؟ یا کشمیر میں نہت معصوم بچوں، جوانوں اور خواتین پر برستی گولیوں سے آج اس شو کا آغاز کروں؟ فلسطین میں قتل ہونے والے انسانوں سے اس شو کا آغاز کروں؟ مولانا عبدالستار عیدی کے بھلائی کے وہ کام جو پوری دنیا میں ایک مسلمان جس نے بلا امتیاز رنگ و نسل انسانیت کی خدمت کی، یا مدر ٹریزا جنہوں نے مسیحی ہوتے ہوئے تمام انسانوں جو دکھوں میں، مصیبتوں میں، بدحالی میں، نا امیدی میں، مایوسیوں میں زندگی کی تمنا اور امید چھوڑ چکے، ان کو گلے سے لگایا، ان کے احوال سے اس شو کا آغاز کروں؟ یا پاکستان اور انڈیا میں ریڈ لائٹ زون، جہاں انڈیا کی بیٹیاں، پاکستان کی بیٹیاں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے جسم کو چند ٹکوں کی خاطر فروخت کرتی ہیں، اور ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے مسلمان علماء، مسیحی علماء، ہندو اور سکھ دھرم کے علماء، بالی ووڈ کے وہ ستارے جن کے پاس لا تعداد دولت، اور وہ حکمران جو عوام کے ووٹ پر آتے، کیا ان معصوم سسکتی ہوئی گناہوں کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی وہ اپنے جسم کو بیچنے والی بیٹیاں، کیا وہ پاکستان کی یا انڈیا کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے درد اور ان کی زندگی کے بجھتے ہوئے چراغوں سے اس کا آغاز کروں؟ یا آج مندروں اور مسجدوں، گردواروں اور چرچز کے اندر بیٹھے ہوئے
90 या 95% मजहब के रियाकार ठेकेदारों से इस शो का आगाज करूं, या उन मासूम भगतों, मसीहों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों जो गरीब मतवस्त तबके से ताल्लुक रखते, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, जिनकी जिंदगियां वक्त पर अद्वियात ना मिलने की वजह से मौत का शिकार हो रही हैं, उनसे आज के शो का आगाज करूं, या मजहब के उन ठेकेदारों से आज के शो का आगाज करूं जिनके लिए अपने लिए तो सब कुछ जायज है, लेकिन जब बात दीगर जरूरतमंदों की, बेसहारों की आती है तो फिर बहुत से कवानीन उनके आड़े आ जाते हैं। क्या इससे आज के शो का आगाज करूं? अगर इन बातों से आगाज किया जाएगा तो दुख और बढ़ेंगे, तकलीफ और बढ़ेंगी, क्योंकि जब इंसान खुदा के अहकाम, खुदा की शरीयतों को पसे पुश्त डाल देते हैं तो फिर ये तमाम बातें जिनका मैंने जिक्र किया, ये फल हैं। बात कर रहे हैं शरीयतों के निचोड़ की और नए साल की। तो ये जो मैंने बातें की आपके सामने रखी हैं, ये दुनिया की वो सूरत है जो पिछले सालों में रही और आने वाले सालों में भी क्या वही रहेगी। आइए जरा ये क्लिप देखते हैं जिसमें शायर ने बड़ी खूबसूरती से असल हालत को बयान किया। और मेरी दरख्वास्त ये होगी कि तमाम लोग गौर करें ताकि हम शरीयतों के निचोड़ की तरफ जा रहे हैं। और मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से, मसीहों से, हिंदुओं से, सिखों से, दीगर मज़ाहब के लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हम सब देखें क्या हम भी असल जो हकीकत है उसका हिस्सा हैं, या शरीयतों के निचोड़ की बात सुनने की हमें भी ज़रूरत है। आइए ये क्लिप देखते हैं, और ये क्लिप नंबर 2 है जिसमें हम देखेंगे दुनिया की असली हालत, तस्वीर क्या है और शायर ने किस खूबसूरती से इसको बयान किया और नूरा सिस्टर ने इसको बहुत खूबसूरती से गाया है। हम देखें इस शायरी के आईने में हमें क्या दिखाया जा रहा है, और फिर देखेंगे शरीयतों के निचोड़ के आईने में कि हमारी सूरत क्या हो सकती है। आइए ये क्लिप नंबर 2 है हमारी तरतीब में, ये देखते हैं। सब देखिए और सुनिए। मतलब दे रिश्ते ने, मतलब दी यारी है, कोई दिल नू पुछदा नहीं, दौलत ही प्यारी है। जो अपना लगदा है वो भी ता ठगदा है, मेरा यो कहना है बच बच के रहना है। दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी। मतलब दे रिश्ते ने, मतलब दी यारी है। ए झगड़े तरमान सब मारे फरमान, ना रब तो डर देने सब जेबा भर देने। ए सब दी फितरत है, सीने विच नफरत है। गल गोरख तंदे दी, मैं ए बंदे दी, मेरा यो कहना है बच बच के रहना है। दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी। फुल पैंदा वोटां दा, असराज है नोटां दा,
जिमें निभियां निभा लियां निभा नाज़रीन, आपने शायरी सुनी। चूँकि ये शो पिछले 4 साल से कर रहे हैं, 5वां साल है, कोशिश होगी कि कुछ नया अंदाज, नई बातें भी डाली जाएं ताकि हम असल हक़ाइक़ से वाकिफ़ होते चले जाएं। अब यहाँ पर जो शायरी आपके सामने रखी गई, हम नए साल में नंबर बदला है, 18 से 19 नंबर बदल गया है और दुनिया वही है। तो क्या बातें उन्होंने इस तमाम नगमे में पेश की? बच बच के रहना है। पंजाबी में उन्होंने कहा कि रिश्ते कितनी चीज़ें हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। रिश्ते, दौलत, और ये उन्होंने तमाम बातें तरतीब से की हैं। झगड़े हैं, धर्मादे, सीने में नफ़रत है, रब तो डरदे नहीं, खुदा का खौफ नहीं, जेबें भरते हैं। अगर कोई शख्स हकीकत में गौर करेगा तो फिर वो देखेगा बात बंदे की नहीं हो रही, धंधे की हो रही है। इंसान से ज़्यादा अहमियत अपने धंधे की है, अपने इनकम की है। फिर कि हम बिक जाते हैं, ख़रीदार भी इंसान है, बिकने वाला भी इंसान है। ग़ुलामी की नई सूरतें हैं जो इस दुनिया में हमें नज़र आती हैं। और फिर यह कि धोखा दिया जाता है। ये वो इस वक्त हमारे सामने हमारी हकीकत है। हम सब 2 ग्रोहों में शामिल हैं। आप शरीयतों के दावेदार हैं या शरीयतों के बगैर हैं, लेकिन अगर नेक नियति से हम अपने बातन में झांकेंगे, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों नहीं है, किसी अकीदे से क्यों नहीं है, आपका रंग कोई भी क्यों नहीं है, आपका इलाका कोई भी क्यों नहीं है, हम इन रवैयों में ढल चुके हैं शरीयतें होने के बावजूद, फलसफा हयात होने के बावजूद। हमारे हाथों में हमारी मुकद्दस किताबें, उसको आप बाइबल कह लीजिए, उसको आप कुरान कह लीजिए, और मेरे पास दीगर कुतुब भी हैं, हिंदुओं की, सिख बहन भाइयों की, दीगर मज़ाहब की भी पढ़ता रहता हूं। कुतुब कह लीजिए, तालीमात कह लीजिए, लेकिन जब बात अमल की आती है तो फिर यह नगमा जो आपके सामने रखा गया है, यह हमारी असल हालत को हम पर खोलता है। और आज मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि कोई भी शख्स, चाहे वो बड़े से बड़ा आलिम है, बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, चाहे वो दीनी हलकों में है, चाहे वो सियासी हलकों में है, चाहे वो समाजी हलकों में है, वो अपनी असल हालत को देखना नहीं चाहता। और खुदा हमेशा हमारे बातन में हमारी असल हालत को हम पर खोलता है, वो हमें आईना दिखाता है, और शायर ने हमें आईना दिखाया है। कोई शख्स अपनी असल हालत को देखना नहीं चाहता, वो उसको छिपाना चाहता है कि कोई उसको देख ना सके, कोई उसको जान ना सके। लेकिन खुदा ताला के बारे में लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है कि तू मेरे ख्याल को दूर ही से जानता है, अभी वो पैदा भी नहीं हुए, तू उससे वाकिफ है। आज जरूरत इस अमर की है कि हम सब जो इस रंग में रंग चुके, वो लोग जो इस रंग में रंग चुके हैं,
और वो भी हैं जो इस रंग में अभी तक नहीं रंगे गए। तो मैं हमेशा दो ग्रोहों की बात करता हूं, सच है और झूठ है। सच को मानने वाले भी हैं, झूठ की पैरवी करने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन चूंकि ये हमारा पहला लाइव शो है, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरूरत इस अमर की है कि अपने नफ्स की आशनाई की तरफ आइए, अपनी पहचान कीजिए। और अगर तमाम शरीयतों, तमाम आबादतों, तमाम नमाजों, तमाम रियाजतों के बावजूद हम इस हालत में हैं, तो फिर साल के नंबर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बदलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, आप पूरी दुनिया में जहां भी हैं, दुनिया में इस वक्त बहुत लड़ाइयां, झगड़े हो रहे, और उसकी एक वजह शरीयतें भी हैं। आप कहेंगे जी ये कैसे? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता लड़ाई झगड़ा करना। कह तो सकते हैं, कहें, शोर डालें, लिखें, ऊंची बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि गौ रक्षक इंडिया के शहरों में, गांव में इंसानों को इस तरह हलाक कर रहे हैं कि इंसानियत भी शर्मिंदा है। और अगर आप आईसिस के देखें तो मसीहों को किस तरह उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया, इंसानियत भी शर्मिंदा है। और इसके साथ मैं यह भी आज कह दूं, अगर आपने हजारा कम्युनिटी पाकिस्तान में, उनकी एक लॉयर हैं, बीबीसी पर उनकी वीडियो, वो रो रही थी क्योंकि बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, हर एक को बिला दरे कत्ल किया जा रहा है। और वो ये कह रही थी, बीबीसी पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा जंग एक नफा बख्श कारोबार बन चुका है। तो जंगे लड़ने वाले, यहां पर मैं ये भी आज कहना चाहता हूं पाकिस्तान और इंडिया के हुक्मरानों से कि आप सरहद पर मरने वाले फौजियों के बच्चों को वज़ाइफ देते हैं, उनको इजाज़त देते हैं, तो आप इतने ही दानिशवर हैं, तो आप इस जंग को रोक क्यों नहीं देते? आप इस मौत के खेल को बंद क्यों नहीं कर देते? सोचना पड़ेगा। जंगें मसाइल का हल नहीं हैं। दोनों अतराफ में इंसान मरते हैं और उनके खानदान दुखों में से गुजरते हैं। आइए उन शरीयतों की तरफ, आइए खुदा की उस आवाज की तरफ। ऐ हुक्मरानों, सियासतदानों, दीनी और समाजी रहनुमाओं, आओ सुनो खुदा की आवाज कि वो क्या कहता है। तो मैं इस शो के आगाज में आपके सामने जिससे बात को रखना चाहता हूं वो ये है कि खुदावंद का कलाम ये फरमाता है, तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं और तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं हैं। सो खुदा के ख्याल कौन से हैं, खुदा की राहें कौन से हैं, यह जानने की जरूरत है। खुदा की राहें कौन सी हैं? मैं आज यह पैगाम देना चाहता हूं बनी नौ इंसान को। और अगर कुछ लोग इस शो का इंग्लिश में दीगर जुबानों में तर्जमा कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी, पहुंचाइए लोगों तक। क्योंकि जो तालीमात, जो हवाला जात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इन शोज में, वो हमारे मसाइल का हल है, वो हमारी बर्बादियों की राह से बचाने के लिए खुदा की हदायत और तजावीज है। वो आपकी नाकामियों को कामयाबियों में बदलने की राह है, वो आपके दुखों को खुशियों में बदलने की राह है, वो आपके वो मंसूबे जो मौत की तरफ लेकर जा रहे हैं उनके रुख को जिंदगी की तरफ बदल देने की राह है। इसलिए मैं आज बड़े बोझ के साथ साल के शुरू में ही
आप तमाम अहबाब ताल्लुक किसी मजहब से क्यों नहीं है, सुनिए कि खुदा ने जो शरीयतें दी हैं उनका निचोड़ क्या है। लेकिन उससे पहले मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि इन शरीयतों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मेरे साथ मुहतरम पास्टर परवेज खोखर साहब हैं, मुतारफ करवाना चाहता हूं। पास्टर परवेज साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं आप सर? के फजल से खैरियत से हूं और बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं इतना अहम शो और जिसमें आज मैं अपना हिस्सा डाल सकूंगा। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप खुदा के बहुत अजीम खादिम हैं। मैं खुदा का सबसे छोटा खादिम होता हुआ आपकी वफादारी खुदामंद के साथ, आपकी कमिटमेंट खुदामंद के साथ और आपका जज्बा कलीसिया के लिए काबिल कदर है और आप अपना वक्त निकालते हैं, आते हैं शो में, इसके लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। और मैं उन तमाम अहबाब का भी जो मेरी टीम का हिस्सा हैं, जो दुआएं करते हैं, जो दीगर जगहों पर किसी भी तरह से मददगार हैं, मैं खुदामंद का उन सब के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और ये तारीखी लम्हात हैं पास्टर परवेज साहब, दुनिया के लिए खुदामंद की आवाज़ वाज़े और सफाई के साथ पहुंच रही है। ये खबरदारी है, ये आगाही है, ताकि इंसान चाहे वो किसी धर्म, किसी इलाके से उसका ताल्लुक है, वो खुदा की आवाज़ जो भलाई के लिए है उसको सुन सके। तो शरीयतों पर झगड़े हैं। पास्टर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप तीतस 3:9 हमारे लिए पढ़ सकें तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। और उससे पहले, पढ़ने से पहले, अगर जितनी बातें मैंने की हैं, अगर कुछ आप उसमें इजहार ख्याल फरमाना चाहें तो ज़रूर आप बात कीजिए और हमारे लिए ये भी पढ़ दीजिए। मुझे ये खुशी होगी कि जिस खूबसूरती से, जिस नोट से आपने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन किया है, आज मेरी दिल से दुआ ये है कि आप वजाहत से हमें बताएं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, इतना अहम ये मौजू है और मैं खुदा का शुक्र करता हूं जिसने आपकी रहनुमाई की कि आप इस मौजू पर वो जो गलत फहमियां हैं उलमा के दरमियान, अवाम के दरमियान, मज़ाहिब के दरमियान, आज मेरा ईमान और मुझे यकीन है कि पाक कलाम के वसीला से उन सब का तदारक हो जाएगा और उन सब के लिए वजाहत मिल जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर दानियाल। बहुत शुक्रिया सर। खुदावंद यीशु मसीह को सारा जलाल है। खुदा रूहुल कुद्स का शुक्रिया अदा करते हैं चूँकि उसकी मेहरबानी से, बाप की शफकत से है। तो नाजरीन गौर कीजिएगा, शरीयतों पर झगड़े, आज दुनिया में बहुत से झगड़ों का सबब ये शरीयतें बना दी गई हैं, इंसानों ने बनाई हैं। तो आइए देखते हैं इस आयत में क्या लिखा है। पाक कलाम में तीतस 3 बाब और उसकी नामी आयत में लिखा है, मगर बेवकूफ़ी की हुज्जतों और नसब नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों परहेज कर, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा हैं। पास्टर साहब, मैं चाहूँगा आप इसको एक दफ़ा फिर पढ़ दीजिए ताकि हमारे जो चर्चेज़ में बैठे हुए लोग हैं, जो मसाजिद में बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर जो उलमा अकेडमियों में बैठे हुए लोग हैं, जो शरीयतों को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक उस्ताद जो शरीयत का मुअल्लम है, जो शरीयत पर खुद अमल करने वाला है, वो अपने शागिर्द को खुदा के रूहुल कुद्स की तहरीक से एक हदायत कर रहा है। और आज मैं बाइबल कॉलेजेस में बैठे हुए, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठे हुए, चर्चिस के अंदर बाइबल स्कूलों में बैठे हुए, और आज मैं वो जो मंदिरों में, मस्जिदों में, उन सेमिनरीज में बैठे हुए हैं, स्कूलों में बैठे हुए हैं, जो शरीयतों को पढ़ रहे हैं, एक उस्ताद की तरफ से एक तंबी, एक आगाही कि आपका जहन, आपकी सोच, आपका अमल किस तरफ जा चुका है, किस तरफ जा सकता है। खबरदारी है। खबरदारी क्या है? गौर से सुनिए, खुदा के खादिम हमारे लिए फिर से पढ़ेंगे। पास्टर परवेज साहब पढ़िएगा। मगर बेवकूफी की हुज्जतों और नसब नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों परहेज कर,
اس لیے کہ یہ لا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب۔ یہ چیزیں بے فائدہ ہیں کیا؟ شریعتوں پر جھگڑے۔ اور پھر یہاں پر بہت خوبصورت بات ہے جو آج کل ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، ہنسی اڑائی جاتی ہے تعلیمات کی۔ تو یہاں پر بہت واضح لکھا ہے، مگر بیوقوفی کی حجتوں اور نسب ناموں اور جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر۔ ہم گناہوں سے پرہیز کر سکتے ہیں، حرام چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں جی ہم تو بہت پرہیزگار، ہم بہت متقی، ہم تو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں شریعتوں نے جن سے ہمیں دور رہنے کی تلقین کی ہے، جن کے بارے میں اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے، ہم ان سے دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آج جو پرہیز پروگرام فضل ربی کی طرف سے کلام خدا کی روشنی میں آپ تک پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرہیز تجھے کس سے کرنا؟ بے وقوفی کی حجتوں سے۔ منبع کیا ہے؟ خدا کے کلام کی ہنسی اڑانا، تحقیر کرنا، اس کو تبدیل کہنا، اس میں تحریف کی بات کرنا، اور پھر خوشیاں منانا کہ ہم پر یہ مکاشفہ کھل چکا ہے، اس سے پرہیز کر، اور یہ بے فائدہ ہے۔ اور پھر اگلی بات ہے نسب ناموں، جو خاندان کے ناموں کی لسٹ ہوتی ہے، میں اس خاندان سے ہوں، میں اس قبیلے سے ہوں، میں اس ذات سے ہوں، اور پھر جھگڑوں اور ان لڑائیوں سے جو شریعت کی بابت ہوں پرہیز کر۔ شریعت کی بابت جو لڑائیاں ہیں، آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر میں یہ جو لڑائیاں ہیں ان کی ذرا تفصیل دیکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی یہ تو خط بہت پہلے لکھا گیا تھا، تو آج تو شاید ایسا نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں شریعت کی جو جھگڑے ہیں دور حاضرہ میں۔ یہ کلپ نمبر 1 ہے، اور پھر پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر ہم آیات کی روشنی میں دیکھیں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کلام خدا سے کہ یہ جو جھگڑے ہیں ان جھگڑوں سے پیدا کیا ہوتا ہے، اور پھر جو پھل ہیں ان کی پہچان کیسے کریں گے۔ آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں ابھی کہ یہ جو جھگڑے ہیں شریعتوں پر، ان سے ہوتا کیا ہے اور اس کے پھل کیا ہیں، پہچان کیا ہے، اور پھر شریعتوں کی طرف بھی آئیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ شریعتوں پر جھگڑے کیسے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ کلپ دیکھیے اور کچھ تھوڑی سی جھلک ہمیں نظر آ جائے گی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ لوگوں نے قرآن پڑھ کر کسی کو بخشا ہو۔ بس صحابہ کو کیا قرآن پڑھ کے بخشیں گے؟ یہ صحابہ کو نہیں، لوگ آخر اس زمانے میں فوت ہوئے نا، نہیں ہوں گے وہ ٹھیک ہے، کیوں؟ صحابہ کو کیا قرآن پڑھ کے بخشیں؟ تو ہمارے لیے نمونہ تو وہی لوگ ہیں۔ صحابہ تو صحابہ ہیں۔ پہلا زمانہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ صحابہ تو صحابہ ہیں، وہ تو ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا پھر آپ دلیل کہاں سے پکڑیں گے؟ اگر یہی بات ہے کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کو بخشنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ وہ گناہ گار ہیں؟ نہیں ہم تو نہیں تو پھر ہر مہینے 11ویں کیوں بخشوا رہے ہیں ان کو؟ بریانی کھانے کے لیے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، جزاک اللہ۔ اب مجھے کوئی اختلاف نہیں جی ان کے وسیلے سے ملتے ہیں۔ بس اب کچھ بھی کہتے رہے، میرا مسئلہ حل ہے، اب کچھ بھی کہتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب اب 2 مسئلے ہو گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تشریح حضرت نے فرمائی ہے خود اپنی بات کے اندر یہ آ گئے، جیسے کہ آپ نے ان سے وضاحت کی، یہ خود ساختہ حدیث کی تشریح ہے۔ جیسے خود ساختہ قرآن کی تشریح کرنا تحریف قرآن ہے، اس طرح خود ساختہ حدیث کی تشریح کرنا تحریف حدیث ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں، آپ نے حدیث میں اضافہ درمیان میں آپ نہ بولے نا، اب میں آپ کی گفتگو 6 منٹ میں نے سنی، آپ بولے نا، پہلے آپ نہیں پھر آپ تو کہ وہاں 6 منٹ آپ نے کیوں؟ میں سے ٹوکنے کا کبھی دنیا یہ بھی تو دیکھے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ قریشی صاحب کو بھی ٹوکا تھا۔
दुनिया को मिसाल तो मिले ना। मुझे तो सारी दुनिया कहती है कि हमेशा कारी खलील को टोका जाता है। टोका नहीं जाता, रोका जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, कारी खलील से मोहब्बत है, सवाल किया जाता है। डॉक्टर साहब देखे ना, अब पहली बात तो ये है कि इन्हें औरों में हर ऐब नजर आ जाता है, खुद इनको कोई पता नहीं है कि उलमा का अंदाज क्या होना चाहिए। इन्होंने गलत तशरीह की हदीस की, मैं बीच में बोल रहा हूं। आपने मतन गलत पढ़ा है, आपने मतन गलत पढ़ा है। मैंने मतन गलत, मेरी तो तशरीह पे एतराज है, आपने मतन गलत पढ़ा है। जितनी हदीसों का नाम आपने लिया है जो अभी मैंने सुनवा रहे थे, जो आपने एक दफा याद कर रखी है, उसमें से किसी एक हदीस में दिखा दें कि वो छड़ियां तस्बीह कर रही हैं। मेरा जवाब आने लगा है। टोका नहीं, मैं टोक रहा हूं, आपने ये नहीं कहा, टोक रहा हूं, मैं टोक रहा हूं, आपने ये नहीं कहा था, आपने कहा था ये आपने उसके कयास लिया है कि वो इस्तेमाल नहीं, इन्होंने कहा कि हदीस में ये अल्फाज हैं, इस्तेमाल छड़ियां जो गलत। मसला ये है कि आपने ये जितनी भी शुरुआत बुखारी हैं, तमाम शुरुआत बुखारी ने ये लफ्ज लिखे हैं, इमाम इब्ने हजर ने लिखे। मैं शुरुआत की बात नहीं कर रहा, असल मतन की बात का मतलब आपने बुखारी का मतन बदला सकते हो, और ये तहरीफ हदीस की बात नहीं कर सकते। ये तहरीफ हदीस से आपने असल मतन बदला, और असल मतन हुजूर पर बुहतान है। उनकी बात तो सुन ले पहले। नाजरीन, बोल टीवी पर ये जो प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, मुख्तलिफ उलमा, बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं ये सारे, और इस क्लिप का मकसद भी कोई नेगेटिव मनफी प्रोपेगेंडा नहीं है। एक बात जो हो रही है उसकी असल तस्वीर दिखाना मकसद है, और ये सारे क्लिप मौजूद हैं बोल टीवी के जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। आप इस क्लिप को बार बार देख सकते हैं, और ये जो बात की गई, पास्टर परवेज साहब ने जो हवाला हमारे लिए पढ़ा है, पास्टर परवेज साहब को ले लीजिए, तो उस हवाले में ये है शरीयतों पर लड़ाई झगड़े। तो ये हो रहे हैं, उस दौर में भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में बहुत से इंसानों का ज़हन और उनका दिल नफरत से भर चुका है। लड़ाई झगड़ों तक नौबत, और यहां तक कि लोगों को शरीयतों की तालीमात की बिना पर कत्ल तक कर दिया जाता है, कत्ल के फतवे तक दिए जाते हैं। तो पास्टर परवेज साहब, आजकल ये सूरत हाल है या नहीं है, थोड़ा सा इस पर अगर आप इजहार ख्याल फरमाना चाहें तो फिर अगली आयात की तरफ चलते हैं। जी, जैसे आपने पहले इस आयत की हमने तलावत की, वाकया में परहेज नाम की कोई चीज नहीं, और आज हम देखते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक, और जैसे आपने कहा हुज्जत करना, और ये एक वतीरा बन गया है लोगों का कि वो दूसरों को उनकी तज़हीक करने के लिए ये करते हैं। और ये बिल्कुल साफ तस्वीर है ये कि आज जो कुछ हो रहा है उससे परहेज नहीं किया जा रहा, और वो ला हासिल है, उससे कुछ फायदा नहीं। लेकिन ये बिल्कुल आपने हकीकत बयान कर रहे हैं, इसीलिए मैं सोचता हूं कि आज का मौजू जो है वो नहायत अहम है, और मेरी दिली दुआ है कि आज सामाईन इसे देखकर यकीनन अपने आप को इसकी रहनुमाई में सीख सकेंगे और देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अब ये जो आयत आपके सामने रखी गई है कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनसे बचने की तालीम दी गई है। हम 2 तिमोथियस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत को पास्टर साहब अगर आप हमारे लिए पढ़ दें, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। अब यहां पर वाज़े तौर पर कहा गया कि उनसे किनारा करना, मतलब ये कि उनसे अलग हो जाओ, वरना ये तुम्हारी ज़ात को, तुम्हारे ख़ानदान को, तुम्हारे इलाके को, उस मुल्क को जिसमें वो बसते हैं, लड़ाई झगड़ों से भर देंगे। तो अगर आज दयानतदारी से आप इंडिया में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो जो लड़ाई झगड़े मौत का खेल खेला जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह
शरीयतों पर झगड़े हैं, और यहां पर कहा गया है कि तू उनसे किनारा कर, उनसे अलग हो जा। क्यों? अब मैं इस पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। जो माएं सुन रही हैं, जो बहनें सुन रही हैं, जो बेटियां देख और सुन रही हैं, जो वालिद देख और सुन रहे हैं, जो अंकल आंटियां देख और सुन रहे हैं, जो उलमा देख और सुन रहे हैं, जो पासबान देख और सुन रहे हैं, जो ग्रंथी और पंडित देख और सुन रहे हैं या सुनेंगे, ये सारी बातें जब फैलती हैं, जब इनकी तालीमात को कबूल कर लिया जाता है, तो मैं आज ये बताना चाहता हूं कलाम खुदा की रोशनी में कि जो बातें सुनते हैं, इससे होता क्या है, इसकी निशानदही जरूरी है। और पास्टर प्रवेश साहब हमारे लिए पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथियस का खत है, दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत में देखते हैं कि जब ये बातें सुनाई जाती हैं, जब ये समाज से टकराती हैं, जब ये सोचों में डाल दी जाती हैं, जब ये सोचें बन जाती हैं, तो फिर सुनने वालों के लिए क्या पैदा होता है। पास्टर साहब, दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब 14वीं आयत। ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद कर कि लफ्जी तकरार ना करें, जिससे कुछ हासिल नहीं, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। जी पास्टर साहब, आखिरी जरा जुमला जो अल्फाज हैं वो पढ़ दीजिए। सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। आप घर से भेजते हैं कि ये संवर जाएंगे, आप घर से भेजते हैं इनका किरदार खुदाई सफात में डेवलप होगा, खुदाई सफात इनके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ये उलमा के पास जा रहे हैं जिनके पास इल्म है, जिनके पास शरीयतें हैं, जिनके पास खुदा है, जिनके पास अंबिया की तालीमात हैं। लेकिन ये जो आप भेजते हैं किरदार बनेगा, खुदाई सफात आएंगी, उसका उल्ट है, बिगड़ जाते हैं। लफ्जी तकरार, बगाड़ से मुराद है कि असल हालत का असल हालत में रहना, या असल हालत जो है उसको बातदरीज तब्दील होते जाना तनज़ली की तरफ, बगाड़ की तरफ, नुकसान की तरफ। तो मैं आज खुदा का खादिम होता हुआ आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि क्या चर्चिस के अंदर, क्या मसाजिद के अंदर, सिनागॉग्स के अंदर, अमाम बारगाहों के अंदर, मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मुराकबा गाहों के अंदर जो सुनाई दे रहा है, जो आवाज इंसानों तक पहुंच रही है, क्या इंसान उससे खुदाई सफात में ढल रहे हैं, इंसानियत के लिए तर्स और मुहब्बत और भलाई के जज्बों से भर रहे हैं, या इसके उल्ट बिगड़ते जा रहे हैं। पास्टर साहब, इस आयत को दोबारा पढ़िएगा। मैं चाहता हूं कि ये आयत जो खुदा का कलाम है, लिखा है इसके बारे में कि ईमान जो सच्चा ईमान है, जो आसमान के खालिक और जमीन पर तमाम मखलूकात को पैदा करने वाले का सच्चा ईमान है, लिखा है कि वो ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। यीशु मसीह से किसी ने पूछा था और कहा भी था कि हम किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हुजूरुल मसीह ने फरमाया, मेरी बातें जिंदगी की बातें हैं। हमारे चारों तरफ बाद-ए-अखलाकी, मौत, लड़ाई झगड़े, नफरत, शरीयतें मौजूद, लेकिन सुनने वाले बिगड़ते जाते हैं। ईमान दुरुस्त सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। आप शरीयतें सुनाने के लिए भेजते, शरीयतें सुनने के लिए जाते, लेकिन पास्टर साहब इस आयत को दोबारा पढ़ दीजिए हमारे लिए। ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद कर। याद दिला और ताकीद कर।
कोई हो जो याद दिलाए, कोई हो जो ताकीद करे। आज प्रोग्राम फजल रबी के वसीला से खुदा आपसे इल्तमास, मैं खुदा का खादिम होता हुआ कर रहा हूं, खुदा आपकी तरफ ध्यान किए हुए हैं कि कोई तो हो जो आवाज उठाए, जो इस बहाव के उल्ट चले, जो झूठ के सामने खड़ा हो जाए, जो गुनाह के सामने खड़ा हो जाए, जो खुदा की आवाज लेकर इंसानों के सामने किसी कुर्बानी से दरेग ना करते हुए खड़ा हो जाए, ताकीद करे कोई तो हो। और खुदा का बंदा तीमुथियुस को लिखता है कि तू वो है। आज भी मैं पाकिस्तान में बसने वाले यंग पास्टर्स जो अभी तक करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं है, पूरी दुनिया में मुसलमान मिशनरीज, मसीही मिशनरीज, हिंदू मिशनरीज, सिख मिशनरीज, दीगर जितने भी हैं, मैं आपसे इल्तमास करता हूं, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि आप जो खुदा के नाम पर खुदा की शरीयतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गए हैं, अपना तजजिया कीजिए, परख कीजिए कि आप की आवाज सुनने वाले, आपकी तालीमात सुनने वाले और आप खुद किस शरीयत के रंग में ढले हुए हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, जहां जहां पूरी दुनिया में आप हैं, आपको इन शोज के वसीला से बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं, हम तो किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन खुदा का कलाम है जो हम सबको बदल सकता है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर या आलिम, मैं एक तालिब इल्म हूं, ना ही मैं कोई सुपरमैन, रूहानी सुपरमैन हूं, कभी नहीं कहा। आम इंसानों की तरह जैसे आम इंसान हैं वैसे मैं भी हूं, बचाया हुआ गुनहगार हूं। तो आप ये ना समझिए कि मैं आप पर किसी चीज को लागू करने के लिए तालीम दे रहा हूं, नहीं। इसलिए ये तालीम है कि हम शरीयतों के दावेदार, हम खुदा की राह पर चलने के दावेदार, लोगों को कहने वाले, आओ ब्रह्मा विष्णु, आओ ब्रह्मा विष्णु शिवा, आओ अल्लाह ताला, आओ यीशु मसीह, आओ ग्रेट बुद्धा, आओ गुरु नानक साहब। लेकिन क्या हम इस दुनिया के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, या हम खुद उसके रंग में रंग चुके हैं? अगर आप कहते हैं कि वो सच्चा है, तो क्या हमारे अंदर से वो सच्चाई निकलती और उसका प्रैक्टिकल अमली इजहार है? हम वह कहते हैं वो मोहब्बत है, तो क्या वो मोहब्बत अमली सूरत में हमारे अंदर है? इसी तरफ चल रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहा हूं। आइए सुनिए कि कोई ताकीद करने वाला हो, और फिर आगे हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस, दूसरा बाब 16वीं आयत पढ़ दीजिए जी जरा। लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर। गौर से सुनिए, अब जो बात यहां की जा रही है, जो बातें करने वाले हैं या बातें की जाती हैं, क्या लिखा है जी, जरा गौर से सुनिएगा। पास्टर साहब पूरी आयत पढ़िए, फिर मैं इस पर बात करता हूं। लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। शुक्रिया पास्टर साहब, फिर से जरा ये पढ़िए। ऐसे शख्स, गौर करें, वो आप कहते हैं ना दीन की खिदमत कर रहे हैं, आप कहते हैं वो दीन वाले हैं, आप कहते हैं वो कलाम वाले हैं, आप कहते हैं वो भलाई वाले हैं, लेकिन पास्टर साहब क्या है असल रंग उनका? बेदीन है, वो बेदीनी में तरक्की करेंगे। बेदीनी में, इससे मुराद क्या? वो दीन से दूर ले जाएंगे, वो दीन की असल हालत को, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, लेकिन इसके असर को कबूल ना करेंगे। हमारा मौजू है शरीयतों का निचोड़, वो बेदीनी में तरक्की करेंगे। तो पास्टर साहब, आज जो हमें पूरी दुनिया में नजर आ रहा है वो दीनदारी नजर आ रही है,
या बेदीनी नज़र आ रही है। पास्टर साहब मैं चाहूँगा एक कॉलर साथ है, इनसे बात करके बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। ये बराह रास्त शो फजल रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हेलो। अच्छा पास्टर साहब, बेदीनी बढ़ रही है और हम ये कहते हैं कि हम दीनदार हैं, तो मैं चाहूँगा अगर आप इस पर कोई बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। वो समझते हैं दीनदारी बढ़ रही है, दीन की तरक्की हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेदीनी बढ़ रही है। जी कॉलर हमारे साथ हैं, बात करते हैं। जी खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। डॉक्टर साहब जी आपकी भी सलामती हो, बात कीजिए। ये डॉक्टर साहब ये मैं अभी आपसे एक सवाल है मेरा, ये जो आप कहें कि खुदा कितने हैं? जी कितने खुदा हैं? अच्छा जी, कितने, आप कितने समझते हैं कितने हैं? नहीं आप अभी हम तो बच्चे हैं, सीख रहे हैं। आप तो अभी आप में हमारे समझा रहे हैं हमें। आप कितनों को मानते हैं? मोहतरम बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं तो आपको बताऊंगा, आप कितने खुदाओं को मानते हैं? नहीं मेरा मकसद ये है कि अगर खुदा एक है तो उसने किताबें ये चार दी हमें झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए आपस में। बहुत शुक्रिया। यही जो बात आपने की है ना, किताबें झगड़ा पैदा करने के लिए, तो मैं आपके सवाल के पीछे जो सवाल है वो चाहता हूं कि आप वो करें। तो बहुत अच्छा किया आपने वो बात बताई है कि किताबें चार हैं और झगड़े कर रहे हैं, यही सवाल है आपका दरअसल, है ना? अभी मेरा मकसद यही है कि मूसा को उसने किताब दे दी, दाऊद को किताब दे दी, यीशु को किताब दे दी, नबी मोहम्मद को किताब दे दी, तो आपने झगड़ा करवा दिया। तो खुदा एक था, तो खुदा ने एक ही किताब देनी चाहिए। शाबाश। जैसे ना अभी तौरात पढ़ते तो उसने कहा कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और शरीर को बनाया। वाह। ठीक है। और तौरात में शरीर पढ़ते हैं कि जो इस्राइल पे लानत करेगा वो खुद लानती हो जाएगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया। जब कुरान पढ़ते हैं तो उसमें बंदर भी बना देता है, सूअर भी बना देता है और चूहे भी बना देता है बनी इस्राइल को। तो ये इंसान कर रहे हैं या खुदा खुद करवा रहा है हमसे? बहुत शुक्रिया। यही मैं चाह रहा था कि कोई कॉल करके तो ये बताए हमें, चार किताबें हम लड़ रहे हैं और खुदा एक है जिसने किताबें दी हैं। तो जो फिर हमें लड़ा खुदा रहा है या इंसान आपस में लड़ रहे हैं? शाबाश, वेरी गुड। तो खुदा में डाल रहा है ना, खुदा लड़ा रहा है या इंसान खुद लड़ रहे हैं, है ना? वेरी गुड। यही मैं चाह रहा था कि ऐसे जो सवालात हैं रिलेटेड वो आएँ ताकि हम उन पर बात करें। तो पहले आपने बात बहुत साफ कर दी है कि खुदा है जिसने किताबें दी हैं, ठीक है? तो उनमें जो तालीम दी गई है उनका जो निचोड़ है ना मोहतरम, वो हम बता रहे हैं। तो आप खुद भी ये शो देखिए और आने वाले शो भी देखिए, शायद 2 हम करेंगे इस पर। मैं तफसील के साथ बता रहा हूं। तो पहली बात आपने जो की कि खुदा, तो खुदा एक है, ठीक है? अब मसला ये हो गया कि किताबें 4 हैं, ठीक है ना? अब ये किताबें जो दी गई हैं, क्या ये इंसानों के लड़ने के लिए दी गई हैं? तो ये बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया है कि ये लड़ाई वाला एलिमेंट कहाँ से आ गया है, लड़ाई वाला कहाँ से आया? इसके लिए अगर आप मुसलमान हैं तो मैं आपको आयात, पहले वैसे मैं एक शो कर चुका हूँ इस पर कि लड़ाई झगड़े कहाँ से आते हैं, ठीक है? अब मैं पास्टर प्रवेश साहब हमारे साथ है, सिर्फ जल्दी से आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे कुरान की मुख्तलिफ आयात, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ों का सबब है वो शैतान को बताया गया है, ठीक है जी? और जी मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपको बताऊंगा ताकि आपकी जो बात है वो, उसका जो जवाब है वो आप सुनने के लिए आने वाले शोज देखें, ठीक है? तो पहली बात, खुदा एक है और लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए? पास्टर प्रवेश साहब ज़रा यकूब के ख़त में चलिएगा और वहाँ से ज़रा मैं बताऊँगा आपको। पहले गौर से सुनिए कि लड़ाई झगड़े आते कहाँ से हैं। इंसानी हिस्सा बताऊँगा और फिर शैतानी हिस्सा बताऊँगा। खुदा नहीं चाहता लड़ाई झगड़े। शैतानी हिस्सा पास्टर साहब पढ़ देंगे, यूहन्ना 8वां बाब है, और इंसानी हिस्सा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कलाम खुदा में से। तो सब सुने मेरे मुसलमान बहन भाई भी, जिनको शायद इस सवाल से वो अभी तक जवाब नहीं ढूंढ सके। पास्टर प्रवेश साहब याकूब के ख़ास से इंसानी हिस्सा ज़रा पढ़िएगा कि तुम में ये लड़ाई झगड़े कहाँ से आ गए।
और फिर हम देखेंगे जो शैतानी हिस्सा है वो देखेंगे यूहन्ना की अंजील से, जो लड़ाई झगड़ों वाला है। शैतान नहीं आता। पास्टर प्रोफेसर पढ़िए जरा इंसानी हिस्सा पहले पढ़ दे, सुनिए जी गौर से। याकूब 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे एजाब में फसाद करती है? यहां पर रुकिएगा पास्टर साहब एक सेकंड के लिए। तो यहां पर खुदावंद का कलाम वाज़े इंसानी हिस्से की निशानदही कर रहा है। सवाल यह है, तुम खुदा के लोग हो, अमन पसंद, सुलझू, और तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? तो हमें वजह ढूंढने पड़ेगी, चाहे आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, कोई भी है इंसान। तो तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? अब जो सबब है वो गौर से सुनिए। पास्टर साहब आप पढ़ दीजिए पूरा इसको। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। जी बहुत शुक्रिया। और फिर वो भी आयत इसी हवाले में है कि जो गुनाह है वो पढ़ दीजिए पास्टर साहब के, ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है और गुनाह मौत पैदा करता है। इस हिस्से में हमने देखा लड़ाई झगड़े कहां से आ गए। वो गैर खुदाई ख्वाहिशात जो किसी इंसान के अंदर अपने मफादात के लिए, अपने एजेंडों के लिए, अपने प्रोग्राम्स के लिए, जो खुदा के कलाम से और खुदा की ज़ाती सफ़ात से मुतसादिम हैं, ये है बात। और पास्टर साहब आप वो पढ़ दीजिए जरा ख्वाहिशात। फिर जी याकूब 1 बाब और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, हाँ हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। ये असबाब, इंसानी असबाब आपको बता रहा हूं, इंसान का हिस्सा कहाँ है, लड़ाई झगड़ों में, गुनाह में और मौत में। ये सारे एस्पेक्ट्स आपके सामने वाजे हो गए। आप साथ ही अभी तक या कॉल ड्रॉप कर दिए? अब दूसरा हिस्सा जरा पास्टर साहब पढ़ दीजिए, जो लड़ाई झगड़े और मौत है, यूहन्ना के 8वें बाब में से। शैतान नहीं आता मगर चुराने और मार डालने को। तो शैतान का हिस्सा भी हम इसमें पढ़ लेते हैं, फिर एक और कॉलर है उनके साथ भी बात करते हैं। यूहन्ना 10 बाब में लिखा है, चोर नहीं आता, 10वीं आयत, मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। बहुत शुक्रिया। अब ये हमने इंसानी हिस्सा देखा लड़ाई झगड़ों का और मौत पैदा करने का। इंसान का क्या हिस्सा है उसमें? उसकी अपनी ख्वाहिशात, उसके अपने एजेंडे, उसके अपने लालच, उसके अपने मफादात, वो क्या पाएगा इससे। और उसके बाद हमने देखा शैतान का क्या हिस्सा है। तो उसमें बहुत सी आयात, अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो फरमाने कुरान पढ़ के देख लें कि मैंने पहले 2-3 प्रोग्राम्स पहले मैंने बताया था कि कौन है जो फसाद पैदा करवाता है। तो इंसानी हिस्सा मैंने बता दिया है, शैतानी हिस्सा है। कॉलर अगर हमारे साथ स्टिल हैं तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं शरीयतों पर झगड़ों की। और फिर एक सवाल भी किसी ने भेजा था, वो मैं अगले शो में उसी से आगाज़ करेंगे। उनका नाम मोहम्मद यूसुफ हुसैन खान है। उन्होंने मोहब्बत पर सवाल भी भेजा था। और फिर हम देखेंगे कि फल और शरीयत में दीगर बातें जो शामिल होती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि बिगाड़ पैदा हो जाता है सुनने वालों में। तो जो सुन रहे हैं, जो अब तक पहुंच रही है, उससे बिगाड़ पैदा हो रहा है। और पहला तिमोथियस का खत 6 बाब और उसकी 4थी आयत को भी देख लेते हैं कि ये जो लोग हैं जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं शरीयतों की वजह से, तो आइए जरा देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा है। पास्टर साहब पढ़िएगा हमारे लिए। वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता। पास्टर साहब जरा बराए मेहरबानी, मैं एक जो बात आप करेंगे उस पर थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि लोग गौर करें। पढ़िए जरा ये आगाज में। वो मगरूर है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता। वो कहता है वो आलिम है, लेकिन वो दरअसल खुदा के मुकाशफे को, खुदा के इल्हाम को, खुदा की शरीयत को जानता तक नहीं। और वो अपनी जो इल्मी काबिलियत है उस पर गरूर कर रहा है। आगे देख लेते हैं।
बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है। उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है। तो जो लफ्जी तकरार का मर्ज है जिनको, तो उनको इलाज की जरूरत है। अब वो बताएंगे, वो इलाज हम बताएंगे अगले शो में कि वो इलाज क्या है। और जब शरीयतों पर झगड़े होते हैं तो फिर जल्दी से मैं बता दूं, 2 मिनट मेरे पास है, और फिर अगले शो में हम जो मजीद हकाइक हैं जो इंसान के लिए खुदा की तरफ से हल है उस पर की तरफ भी बात करेंगे। तो जब शरीयतों पर झगड़े होते हैं तो बातों को ले लिया जाता है, और जल्दी से आपको चंद वजूहात बता देता हूं। रूहानी हकाइक की बजाय मुख्तलिफ ज़ाहिरी तरीक़ाकार पर तवज्जो और ज़ोर दिया जाता है। लफ्ज़ों के माने और मतलब उनके जैसे बाल की खाल उतारना है, एक लफ्ज़ ले लेते हैं, उसकी बाल की खाल उतारना जो हम कहते हैं उर्दू में, सच्चाई के एक पहलू पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और बाकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो कुतुब हैं उनकी तफासीर को मुख्तलिफ मैंने देकर और मुख्तलिफ मुश्किल से मुश्किल बनाकर बाज़ुकात मज़हा खेज़ माने दिए जाते हैं और अपनी बात को मनवाने पर जोर दिया जाता है। खुदा की बादशाहत के असूलों की बजाय सियासी और अपनी मुफाद परस्ती और अजारादारी और बादशाहत को कायम करने के असूल और एजेंडे पेश किए जाते हैं। और फल क्या निकलता है? फल ये कि हर तरफ हम देखते हैं बिगाड़, दुनिया की बर्बादी, तबाही, और नस्ल इंसानी के लिए उन मुश्किलों से निकलने का कोई हल उनको नजर नहीं आता जो आज हमारी दुनिया की सूरत हाल है। पास्टर प्रवेश साहब, बहुत शुक्रिया, आप शरीक हुए, यहीं से जारी रखेंगे। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, दुआ फरमा दीजिए और फिर अगले शो में भी आप हमारे साथ होंगे। खुदावंद का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। पास्टर साहब 30 सेकंड्स में दुआ कीजिए ताकि खुदा का कलाम दिलों में घर कर जाए। खुदाए बुजुर्ग बरतर, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस पाक जिंदगी बख्श कलाम के लिए। हम दुआ करते हैं कि जितने लोगों ने आज इस जिंदगी बख्श कलाम को सुना, आज वो लफ्जी तकरार और उस बिगाड़ से बचकर ऐ खुदावंद तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों को ले लें और आज शरीयत की वो पाक बातें जिससे हमारी जिंदगी संवर सकती है, हमें मदद मिले, रहनुमाई मिले। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे साथ रहिएगा, आने वाले शो भी देखिएगा, खुदा के मुकाशफात खुलेंगे, आप बरकत पाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी। आपका मेजबान दानियाल।